Yes, Okay, let's start with the today's session. Good morning to everyone. Myself, Professor Sandeep Reddy. First of all, I introduce myself, and then I'll introduce about RIC, and then I'll introduce about the our chief guest, right? Akruti ji, can you do one thing, please? I cannot share my screen. Please give me grant. Yes, yes. So, as you know, dear students, dear parents, myself, Professor Sandeep Reddy, I have completed Masters in Philosophy, Masters in Commerce, Master in Business Studies, and post-graduation diploma in Business Management, diploma in Taxation Laws, Government diploma in Cooperative Audit, and finally B.Ed. So I have more than 10-year teaching experience, as well as I have written more than 5 to 10 research paper in different subjects. Now recently pursuing PhD from University of Mumbai, and I'm a representative of all the teachers of Kharghar city. Now it was the part of my little introductory part. Now I would like to tell about the RIC. What is the RIC? Basically, RIC it means what Reddy's Institute of Commerce, right? And it is running since 2011 in Kharghar city. When I was started RIC, so that time I had a one student. Right now, we are reached every year more than 150 students. Now till date, RIC, it means what? Reddy's Institute of Commerce taught to the more than 2,500 students, and they are well placed at various fields. Now, Reddy's Institute of Commerce always provided, better education to the students and always try to give better for the, betterment for the students. Now, it is a part of, kind of activity, and RIC always create healthy and fairly competitive environment to help them to grow in every sphere of activity. A bit academic, we have given equal opportunities to all students so that they realize their true potential and get ready to face their outer world once they complete their college studies. Along with academics, Reddy's Institute of Commerce always try to give different different knowledge like that, career opportunities, personality development, right? And how to develop their personality. So RIC always try to do best for the betterment of students. Now RIC provides different kinds of courses like that. It starts onwards 11th and 12th commerce, and then for the talking about the graduation courses, RIC offered BCom, BAF, BFM, BMS, BBI, BPA, BCIT, FI, SY, TY. As well as along with these courses, we are providing master courses like that MCom, MBA, MMS, etc. So now these are the toppers of the last years. We cannot organize the felicitation program the last year due to the reason of COVID pandemic, and these are the toppers like that. We are the having along with the faculties like Kiran Reddy, and we are having with the students toppers. Now, most and interesting part of the today's session is that steps to shine in abroad. Right, this seminar is given by the our ex student Akruti Patel. So I would like to tell about her. Right, Akruti Patel, she's very energetic student, and she is very humble to learn, new something. That is why she got reward whatever she expected in the past. Now it's a great immense pleasure to introduce and welcome to today's resource person Akruti Patel. So she's giving guidance on the this topic, how to shine our career in abroad. So I'll tell you again about the Akruti Patel.
Kritik Patel, please, can you share your screen? Yeah. See, Akruti Patel, she is becoming a motivator for RIC students as well as society, and she is very inspiring to inspire all students how to earn and learn in abroad, because she's also normal student, right? She work hard and harder. That's why she got rewards, and she's working in Canada. After she has completed her graduation from Ramsey Thakur College of Commerce, Kharghar, in Bachelor of Management Studies. After that completion of Bachelor of Management Studies, she completed her master's from Centennial College, Canada. That course name is what? Global Business Management Post-Graduation Certificate Program. She has completed her master's from Centennial College, Canada. Now, when she was in our class, so that time she got first rank from the Ramsey Thakur College as well as from RIC, and she got special O grade in SFM, right? So I am very impressed from her personality as well as her study and dedication towards the study. Yes. Next. Recently, she's working as an administrative assistant in Development Industries Limited, Canada, as well as Platinum Immersion Consultancy Services, as she's working as a volunteering, right? Next. When I talk about her achievements, see, I told you already, she's very enthusiastic, and she's very energetic. She's motivating. Now she's becoming a role model for RIC students, because she was studied RIC as well as now she's working in Canada, like that, abroad. So she will be share with us her journey during the period. But before that, I'll tell you in a short her achievements. She got first rank in TYBMS from Ramsey Thakur College of Commerce, as well as she had completed certified courses in computerized, and she's having very well skill and good skill managing organizational change for managers, e-commerce fundamentals, job hunters, networking masterclass, etc. So I request to Akruti Patel ji to share your views, to share your knowledge with our students. And I'm very we are very lucky, all guys and parents, she's having with us, and she's sharing her experience, her journey from the RIC to Canada. Now, please welcome Akruti ji. Hello, sir. Hello, everyone. Thank you for having me here, and thank you for this great introduction, sir. Welcome. Most yeah, today we are here to to look after the opportunities in Canada. What is the process? A step-by-step process. So I will share my screen, and yeah. We'll go from the first step. So steps to shine in abroad. So आप लोग को किसको नहीं चमकना है? कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे. हम सब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए है, और रेडी सर के गाइडेंस में तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे ही. सर बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं. और तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी, स्टेप बाय स्टेप जर्नी. So very first step is take a decision making. इसको हम गोल सेटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिसीजन मेकिंग इसलिए कहूंगी क्योंकि हम गोल सेट करने के बाद उसको कंप्लीट करने के लिए हम डिसाइड करते हैं, इसलिए मैं इसको डिसीजन मेकिंग कहूंगी. क्योंकि गोल सेट तो हम कई सारे गोल सेट कर लेते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम वो रीजंस को ओवरकम करके हमें वो गोल्स अचीव करने हैं, इसलिए इसे डिसीजन मेकिंग कहूंगी मैं. और इस डिसीजन को फॉर्म रखना है और स्पेसिफिक रहना है, आगे पीछे नहीं सोचना है, बस इस पे ही वर्क करना है. देन गो अहेड विथ अ डेडिकेशन. पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है. मेहनत करोगे अपने आप आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस.
Always think about what to do next rather than thinking about what mistakes you have done, what you are doing right now. आगे क्या करना है, आगे का सोचोगे तो आगे बढ़ोगे. Then the next step is course selection. ये सबसे ज़्यादा important है क्योंकि हम कोर्स कैसे सिलेक्ट करें उसमें कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू आर इन ग्रेजुएशन सेकेंड और थर्ड ईयर, you can make a list of all the subjects you are studying right now, all the subjects, and then you can shortlist the subjects which you like. Make a keyword of those subjects, and with the help of that keyword you can do the research of available courses in Canada. यहाँ पे colleges में हम जैसे कि management का है तो management के related आपको 5-6 courses मिल जाएंगे. वैसे ही अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के रिलेटेड कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. वैसे हर एक फील्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर कॉमर्स, आल्सो फॉर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, एवरीथिंग. तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट के बिना आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस हम सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास होंगे, हम हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे खुशी के साथ. देन द नेक्स्ट स्टेप इज लैंग्वेज. कनाडा में, स्पेशली कनाडा में ही नहीं, लेकिन कोई भी कंट्री में अगर आप स्टडी करने जाओगे तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी जरूरी होती है. और मोस्ट कॉमन जो सारे मोस्टली ये जो स्टूडेंट्स देते हैं वो है आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. देन द नेक्स्ट इज टॉफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. और अगर आप कनाडा में ही परस्यू करना चाहते हो तो कनाडा की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच. तो फ्रेंच के लिए दो टेस्ट है. टेस्ट द इवैल्यूएशन द फ्रेंचेस, TEF. इसका मतलब है फ्रेंच असेसमेंट टेस्ट. और है TCF, टेस्ट द कॉन्सेंस द फ्रेंचेस. इसका मतलब है फ्रेंच नॉलेज टेस्ट. आपको फ्रेंच के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी इंग्लिश के बारे में है, वो हमें टेस्ट पास करना होता है. जो डिफिकल्ट नहीं होता है, जिसकी हमें सिर्फ टेक्निक समझनी होती है. हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े तो ऑब्वियसली हमें इंग्लिश आती ही है, बस टेक्निक समझ जाए हम टेस्ट पास कर सकते हैं. तो इसमें आते हैं 4 मॉड्यूल्स. फर्स्ट है लिसनिंग, सेकंड है रीडिंग, थर्ड है राइटिंग एंड फोर्थ है स्पीकिंग. अब इसमें डिफिकल्ट चीज क्या है? डिफिकल्ट चीज जैसे मैंने कहा कि टेक्निक समझनी होती है. लिसनिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, रीडिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, राइटिंग में कितने टास्क होते हैं, स्पीकिंग कितने मिनट का होता है, इसमें वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करनी है, वो सारी टेक्निक समझने की जरूरत है. वो टेक्निक्स अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है आईएलटीएस में अच्छा स्कोर लाने में. लिसनिंग होता है हाफ एन आवर का. रीडिंग में 3 पार्ट्स होते हैं और उसमें अराउंड 40 क्वेश्चंस होते हैं. राइटिंग में 2 टास्क होते हैं. एक टास्क होता है, फर्स्ट टास्क होता है ग्राफ या फिर चार्ट होता है, टेबल होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है. और सेकंड टास्क होता है, उसमें होता है एसे राइटिंग. और स्पीकिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो हम हमारे पर्सनल क्वेश्चंस, आई मीन पर्सनल टेस्ट, प्रेफरेंस, नाम, वो सब हमें पूछते हैं. और सेकंड पार्ट में जनरल क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर हमें 1.5-2 मिनट का स्पीच देना होता है. अभी यहाँ पे सवाल आता है एकेडमिक डे या जनरल डे. 2 टाइप का होता है. फॉर स्टडीज only academic is valid, not the general one. IELTS भी 2 टाइप में हम दे सकते हैं, पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड. दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है. पेपर बेस्ड हर किसी को फेमिलियर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में इफ यू हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड यू कैन गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड. और दोनों के रिजल्ट के टाइमिंग में भी डिफरेंस है. अगर हमें एडमिशन की जल्दी है तो कंप्यूटर बेस्ड में रिजल्ट जल्दी मिल जाता है. पेपर बेस्ड में 13 डेज लगते हैं और कंप्यूटर बेस्ड में 3 to 5 डेज में रिजल्ट आ जाता है. ये बैंड्स, ये आईएलटीएस का स्कोर कैलकुलेट होता है आउट ऑफ 9 बैंड्स. और यहाँ मोस्ट कॉमनली रिक्वायरमेंट है
6.5 ओवरऑल 6.5 चारों मॉड्यूल का मिला के ओवरऑल एवरेज होना चाहिए 6.5, जिसमें किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। 2 इंस्टीट्यूशंस है जो आईएलटीएस के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम ये दोनों की में से किसी भी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और इनके क्लासेस के लिए हम ऑनलाइन आपके खारघर के आसपास, नेरुल के आसपास कई क्लासेस मिल जाएंगे आईएलटीएस के लिए। अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। पर्सनली मैंने यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो किए हैं और क्लासेस भी ज्वाइन किए हैं। क्लासेस में टेक्निक्स अच्छे से समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। और यूट्यूब वीडियोस और क्लासेस दोनों मिलाएंगे तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। देन इट कम्स टू कॉलेज एडमिशन। अभी एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम देखेंगे। इसमें है डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो देखना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमें मिलेगी चेकलिस्ट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो गैदर करके फिर उनको अपलोड करना है और हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। एप्लीकेशन करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है ऑफर लेटर के लिए। हर एक कॉलेजेस का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, कितना वेटिंग टाइम है, हर एक कॉलेज का डिफरेंट होता है। कोई कॉलेज में 15 दिन का होता है, कहीं कहीं 1 महीना होता है, कहीं 1.5 महीना, कहीं कहीं 1 हफ्ते में भी आ जाता है। देन ऑफर लेटर आने के बाद हमें ये देखना है कि ऑफर लेटर होने के बाद हमें स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन भी देखना है अगर एप्लीकेबल है तो। इफ यू हैव अ गुड स्कोर एंड तो हम कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनकी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया चेक करते हैं। इफ वी आर एलिजिबल तो हमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और एजुकेशन लोन तो बेस्ट आइडिया है ही, क्योंकि इसमें हमारा फिलहाल ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है। बाद में हम स्टडी करने के साथ साथ कैपेबल बन के हम लोन रीपेमेंट कर सकते हैं टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स के साथ। और एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट रेट दूसरी लोन से कंपैरेटिवली कम होता है। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको बैंक ही ठीक से दे पाएगी, अपडेटेड डिटेल्स। देन इट कम्स टू फी पेमेंट। फी पेमेंट में हम हमारे पास सबसे पहले है डिपॉजिट हमें देनी पड़ती है स्टार्टिंग में। जैसे ही हमारे पास ऑफर लेटर आता है तो हमारा इंटरेस्ट कंफर्म करने के लिए जितनी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है उतनी डिपॉजिट फीस हमें जमा करनी होती है शॉर्ट टर्म में। वो लोग हमें डेडलाइन प्रोवाइड करते हैं, हर कॉलेज की अलग डेडलाइन होती है। और वो ये डिपॉजिट होने के बाद महीना या 1.5 महीना हमें मिलता है, डिपेंड ऑन कॉलेज रूल्स, हमारी फाइनल फीस पेमेंट करने के लिए, जिसमें हम हमारा बैंक लोन अप्रूव करवा सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन वेट फॉर द जीआईसी आता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये अकाउंट हमें यहाँ अगर आप कनाडा के लिए देख रहे हो तो कनाडा के लिए की कोई भी बैंक में आप जीआईसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जहाँ आप अपना स्टूडेंट अकाउंट खोलना चाहते हो। तो जीआईसी अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि ये गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इसके नाम में ही हमें पता चलता है कि एक गारंटी है कि अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और हमें जॉब नहीं मिलती है तुरंत, कुछ कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई में ज्यादा फोकस करेंगे, जॉब तो बाद में देखा जाएगा। तो हमारे पास 1 साल का हम हमारा खर्चा निकाल सकते हैं। वो गारंटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है, जिससे हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। हम पढ़ाई और जॉब दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं विदाउट मच मेंटल स्ट्रेस। फिर आता है एडमिशन हो गया, अभी वीजा अप्लाई करना है। वीजा हम कैसे अप्लाई करेंगे? पेपर बेस्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। पेपर बेस्ड के लिए हमें वीएफएस में जाके पेपर्स सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर हमें वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सीआईसी की वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके रजिस्टर करके फिर एप्लीकेशन कर सकते हो। इसकी प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली 45 डेज। कोविड की वजह से इसकी प्रोसेसिंग टाइम बढ़ चुकी है, लेकिन यूजुअली ये होता है 45 डेज का पीरियड। और वीजा अप्लाई होने के बाद फ्लाई टू कनाडा। अभी इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप स्टेप 2, 3 एंड 4 हैंड इन हैंड कर सकते हो। और एजेंसीज जो होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, अगर आप उनकी हेल्प लेते हो
तो आपको बहुत बढ़िया होता है, जिससे आप अपने आइल्स में ज्यादा फोकस कर सकते हो और बाकी कोर्स कौन से लेने हैं वो सारे आइडियाज आपको एजेंसीज प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करने आई मीन हेल्प करती है एजेंसीज, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। मैंने कंसल्टेंसी सर्विस हायर की थी जिसमें एक्सपेंस हमारा नहीं होता है इतना, लेकिन हमें अच्छी सर्विस मिल जाती है। वी हैव टू डू द रिसर्च, दैट्स इट। Research is the most important thing in any process. If you have any question regarding this, you can ask me. Yes. Any questions? Request to all students, kindly start your videos. सब लोग अपनी वीडियो चालू करो और लेट्स सी आपके जो कुछ भी डाउट्स रहेंगी आकृति के साथ शेयर करेंगे हम लोग। यस, फटाफट ऑल ऑफ यू काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस फटाफट। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस। यस, अभी किसी को कुछ डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो बेझिझक। यस, Any doubts? किसी को डाउट है भाई बोलो फटाफट कि No, एग्जैक्टली हाँ sir. बोलो। No, sir. अगर किसी को डाउट है कि मतलब आपने मतलब स्टडी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की। आकृति जी, जब भी आपने कनाडा जाने का आपके माइंड में कैसे आया, मतलब कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपने वो माइंडसेट किया कि मतलब आई वांट टू अर्न एंड लर्न इन कनाडा, उसके पीछे कौन मोटिवेट था, या तो फिर कोई ऐसा कौन सी मतलब आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट या तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब आप एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। Yes, motivation. मेरी sister. यस, She was trying to settle in abroad. तो उसको देख के मुझे भी मोटिवेशन आ गया और फिर फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट, ये सब से फिर आगे बढ़ने की चाह आ गई। और यहाँ पे आने के बाद मेहनत, पापा सबसे बड़े इंस्पिरेशन है, उनको देखा है जीरो से हीरो बनते हुए, तो बस उनके ही फॉलो करना है। जैसे कि आपके पापा आपके लिए जीरो से हीरो बन गए, वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप भी जीरो से हीरो से कुछ कम नहीं है, राइट? थैंक यू सो मच सर। तो एंड और कुछ सवाल है भाई कि आकृति जी, अभी ये जो अपने जो स्टूडेंट्स है, कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या तो फिर कुछ 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आप 12th के बाद वहाँ पे ऐसे कौन से कोर्सेस होते हैं जिनके चलते ये यहाँ पे वो सोच सकते हैं कि यस दे कैन डू दैट कोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड, एंड हाउ मच परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड इफ दे आर लुकिंग टू टेक एडमिशन इन कनाडा? ऐसा कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया वगैरह होगा तो वो भी बता दीजिए आप। परसेंटेज का क्राइटेरिया बेसिकली इतना होता नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा अगर 50% से ज्यादा है तो, क्योंकि यहाँ की जो मार्किंग सिस्टम है स्पेशली कनाडा की, वो मिनिमम 50% चाहिए पासिंग के लिए, तो उस हिसाब से हमारे बेटर रहेगा स्टूडेंट अगर मिनिमम 50%। वो तो आपने हर स्टूडेंट को मिनिमम 60% मिलते ही मिलते, उसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल सर। है। राइट, हाँ। तो और कुछ सवाल है भाई? मेलविन? नहीं है सर, समझ गया सर। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना है related to the topic, you can ask me. It is actually As well as a new experience. It's good experience क्योंकि हम जो पढ़ते आए हैं वो थियोरेटिकल बेस्ड है, और हमें एक नई दुनिया में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करने का चांस मिलता है, तो आई थिंक ग्रैबिंग इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो और एक आकृति मैंने कुछ सुना कि जैसे कि इंडिया का जो एजुकेशन जो होता है, अभी भी फिलहाल में कुछ अपने इंडिया का एक स्टूडेंट है, उसने ही गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 20,000 स्टूडेंट्स आते हैं, 20,000 में से टॉप स्टूडेंट्स 20 सिलेक्ट किए जाते हैं, और उसमें से भी अपना इंडिया का एक फर्स्ट रैंक पे आ गया है। स्टूडेंट्स का नाम अभी मुझे याद नहीं फिलहाल के लिए, बट उनका कहना है कि कि इंडिया का एजुकेशन और एब्रॉड का एजुकेशन, ये दोनों में
बहुत फर्क है। ऐसे कुछ आपने कुछ रियलाइज किए हैं आपने? ये फर्क मैंने रियलाइज किया है। इंडिया में वो कहते हैं ना कि छड़ी लगती है तभी ही हमें याद रहता है। वो एक्चुअली वो याद रखना ना हमें आगे जाके बहुत यूजफुल होता है। हर बार हमारे पास इंटरनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमारे कॉमन सेंस में आ ही जाता है। और यहाँ पे सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, ज्यादातर आईटी टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा यूजेज है। आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने ही वाला है, तो मशीनरी आने ही वाली है। लेकिन फिलहाल हमें भी अपनी सोच के हिसाब से हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ इंडिया का बेटर है यहाँ का बेटर है, लेकिन फर्क दोनों में बहुत है और दोनों ही अपने अपने जगह अच्छे हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट या है। जैसे कि इसका इनका इनका मतलब है कि ये जो इंडिया का जो एजुकेशन है कॉन्सेप्चुअल होता है और बाहर जो होता है अप्लाइड होता है डायरेक्टली, मतलब यस एप्लीकेशन जिसको कहते हैं हम लोग। या जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ते हो तो वो हो गया कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बट इन व्हेन वी टॉक अबाउट द अब्रॉड तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ सिखाया जाएगा वहाँ पे, जी बिल्कुल। राइट? यस, थैंक यू। और कुछ है भाई क्वेश्चंस आपके दिमाग में? आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस होता है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि अपने घर की गेस्ट है, तो इसमें कोई झिझकने की कोई टेंशन है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। और ये अपने अभी तुम्हारे लिए इंस्पायरेशन बन सकती है आकृति पटेल, क्योंकि आप भी रियलाइज कर सकते हो, आप भी ड्रीम देख सकते हो कि अगर अपनी ही क्लास की एक स्टूडेंट वहाँ पे जाके एजुकेशन पूरा करके वहाँ पे सेटल हो सकती है, व्हाई यू कैन नॉट? ये सवाल आप खुद से पूछ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेहनत करो, Abroad- आगे बढ़ते जाओगे अपने आप। बस बस बस, सेकेंड नेम ऑफ सक्सेस इज हार्डवर्क। हमेशा हमेशा याद रखना बेटा लोग, कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना, ये नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी मिलेगा मुझे, लेकिन बस कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है, यही यस सोच रखी है एग्जैक्टली। मैंने। अभी आकुल जी, अभी यहाँ पे जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर फीलिंग लाइक दैट एकेडमिक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना ही समझ लेते हैं वो, बट उनको ये पता नहीं कि अदर देन एकेडमिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितना एकेडमिक्स होता है, एग्जैक्टली। राइट? जैसे कि अभी आकृति जब कॉलेज में थे तो उस टाइम पे शी वाज पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कॉलेजेस, एंकरिंग हो, होस्टिंग हो, या तो फिर स्पोर्ट्स हो, कौन सी भी टाइप के जो एक्टिविटीज होते तो वो पार्टिसिपेट करते थे। इसका मतलब क्या है, इसी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, और इसी के जरिए हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो डेवलप हो चुकी जाती है। अपूर्वा, अदिति, यस बेटा, आपको कुछ डाउट होगा तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को बाद में भी कोई डाउट आता है तो आप सर से पूछ के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चे कंपनी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है अभी भी आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो, सर अभी आगे क्या करें, कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, कि सर अभी हम 12th में हैं तो हम कैसे इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पीपीटी में ऑलरेडी बताया है कि मतलब सबसे पहले आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली। राइट? कि भाई मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, राइट? How long is the Canadian administration process? What about the finance? One of the question has asked या this question, Akurti. this takes around 4 to 5 months, and Okay. finance, if you have finance, you can your family can fund the finance, then there is no problem. And if it's not like that, then bank loan is very good option, educational loan. So I request to you, Akurti, कि आप इसका टेंटेटिव मतलब कितना अमाउंट लग सकता है, कि मतलब ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि per semester 8 to 10,000 Canadian dollars, मतलब 4-5 लाख रुपए पर सेमेस्टर। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हमारे पास 10 लाख होते तो हमारा फॉरेन का जो अब्रॉड का जो एजुकेशन होता है वो पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल, ओके। क्योंकि और बैंक इज 2 द बेस्ट सेमेस्टर की ऑप्शन। फीस, मेरी कॉलेज में एक क्राइटेरिया था कि 2 सेमेस्टर की फीस हमें पहले ही पे करनी होती थी, और जीआईसी अकाउंट होता था, क्रिएट करना होता था। जीआईसी अकाउंट में 5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट पे करनी होती थी। तो बाद में हम यहाँ पे जॉब करके भी सेविंग्स करके 3rd 4th सेमेस्टर की फीस निकाल सकते हैं। ओके, हो गया सबका डाउट। आकृति, अभी आप लास्ट में क्या बताएंगे अपने बारे में, आरएस के बारे में? वेट वेट वेट, वन ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द अपूर्वा शिर्की, व्हाट What अबाउट द about रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस एंड प्रॉब्लम्स? Yeah,
रेसिडेंशियल एक्सपेंस में यहाँ पे क्राइटेरिया है कि फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट हमें एज अ डिपॉजिट लास्ट मंथ का पहले ही देना होता है। तो जैसे ही कनाडा लैंड करोगे, स्टूडेंट अकाउंट खोलोगे, आपके अकाउंट में जीआईसी अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है उसमें से आपके स्टूडेंट अकाउंट में $2000 आ जाता है, जिससे आप ये रहने का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ग्रोसरीज जो नेसेसिटीज है बाकी चीजें खरीदने की, वो आप कर सकते हो, और बाद में आप पार्ट टाइम जॉब करके फिर अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। एंड रेंट, हर एक जगह का रेंट अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन प्लेस, डिपेंड ऑन द Area. ओनर्स लीज, एवरीथिंग। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अगेन किसी का क्वेश्चन है? अगेन एनीथिंग एल्स? आप जितना पूछोगे ना बेटा लोग, आपके लिए उतना इजी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला कोई और बंदा नहीं मिलेगा ये आपकी दुनिया एक्चुअली में। मैंने ये सारी प्रोसेस खुद एक्सपीरियंस की है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको आंसर्स दे पाऊँ। ओके, डन एवरीवन, ओवर। और कुछ होगा तो बोल दो। ठीक है आकृति जी, लास्ट आप अपने क्लास के बारे में या तो फिर अपने बारे में क्या कहोगी, लास्ट 2 लाइन्स। क्लास ने, आरआईसी ने स्पेशली संदीप सर ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। नॉट ओनली जब मैं स्टूडेंट थी, आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द आरआईसी आल्सो सर ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आरआईसी से कभी निकली थी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते इसलिए आपको भी मैं भी जुड़ा रहता हूँ। थिंग इज सेम। जी सर, हमने क्लास में मस्ती भी बहुत की है, पढ़ाई भी उतनी ही की है। यस यस एग्जैक्टली, पढ़ाई के साथ मस्ती भी चाहिए, क्योंकि अगर मस्ती के साथ हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर उसका एंजॉयमेंट भी नहीं हो पाता है ठीक तरह से, और लाइफ भी नहीं जी पाते हैं, जी राइट? बिल्कुल। So thanks for coming, Akruti, and all dear students who uh, attended these sessions. And Akruti, especially thanks to you have given precious time to all of us and guided how to learn and earn in Canada. So thank you very much, everyone, to present over here. Right? Have a good थैंक day. यू Have सो a मच nice फॉर day. इनवाइटिंग मी सर। Most एंड अगर welcome. किसी Most को भी welcome. मैं कुछ भी हेल्पफुल हुई तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर Yes, मी। yes, yes. Sure, मैं आपको परेशान करूंगा जरूर. पक्का ठीक है. सर। चलिए वैसे कंपनी, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू, विद टेक अस। केयर। या सेम।